Jai Hind dear children, welcome in the revision class of ratio and proportion. I have taken two classes for this. In this class we will do the first exercise and in the next class we will do the next, that is proportion exercise. Okay, so let's start with some untouched questions which we have not solved during the classwork. I am taking some examples from your book, questions from your book children. Like in question number 1, exercise 8a, third part, 6 whole 2 by 3 and 7 whole 1 by 2. They are saying that question is express the following ratio in simplest form. Express the following ratio. Ratio is given to us and they said that express this in simplest form. So 6 whole 2 by 3, 6 whole 2 by 3 and one more is 7 whole 1 by 2. 7 whole 1 by 2. These are two mixed fractions, you can say, which is given in the ratio. So the very first step is we will convert it into improper. 6 3s are 18. 6 3s are 18 plus 2. 20 by 3. It is 20 by 3. Is 2. 7 2s are 14 plus 1. 15 by 2. Still we are unable to simplify it because there are denominators. So let's remove the denominator. How, children? By taking the LCM of the denominators and multiplying it on both the ratios. Okay, so 3 and 2, LCM of 3 and 2 is 6. LCM of 3 and 2 is 6. So what we will do? We will multiply 6 to the first one and with the second one. Same. Okay, this is 15 by 2. So we will multiply 6 on with both the numbers. Now simplify, children. 3 2s are 6 and here 2 3s are 6. So it will become 2 2s are 4, 40 and 45. Okay, 40 and 45. Now what we will do? We will divide these two numbers by their HCF. Okay, or you can simply simplify it also, like it is 40 by 45. No, 40 is to 45 means this is this. So you can simplify that. It will solve by 5. So 5 8s are 40, 5 9s are 45. The answer is 8 is to 9. You can simplify in this way also. If there is a bigger number, take the HCF. Find out the HCF of those two numbers first and then divide in numerator and denominator by the given HCF to find the simplest answer. ठीक है, इसमें तो आपको पता है 40 by 45 है, तो it will be divided by 5. आपने तुरंत 5 8s are 40 किया और 5 9s are 45 कर दिया. बड़े नंबर आएंगे तो आप HCF फाइंड आउट करोगे, डिवीजन मेथड से फाइंड कर लीजिएगा. इट विल बी इजियर. एंड देन उस HCF को यहाँ पे उससे यहाँ से डिवाइड करोगे, यहाँ इस नंबर को भी उसी HCF से डिवाइड करोगे, तब जाके आपको सिंपलेस्ट आंसर एक ही बार में मिल जाएगा बेटा. अदरवाइज यू हैव टू डिवाइड इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन टू रीच द सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, सो इसका आंसर आपका आएगा 8 is to 9. दिस इज सिंपलेस्ट. आफ्टर दिस यू कांट मेक इट सिंपल. ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है. रेशियो जो क्वेश्चन है, दिस इज नाउ इन सिंपलेस्ट फॉर्म. Now let's see another question. Question is express the following ratio in simplest form. Okay, question is 1 hour 5 minutes and 45 minutes. 1 hour 5 minutes and दूसरा है आपका 45 minutes. ठीक है, this is in unit. The question which is given in the form of ratio, it is in unit and we have to make it in simplest form. तो simplest form बनाने से पहले see the unit, children. Are the units same? ये मिनट में है, ये भी मिनट में है, but it is in hour. So what you have to do? You have to make it one single unit. ठीक है, एक ही यूनिट हर जगह हो, तब जाके आप इसको सॉल्व कर पाएंगे. So 1 hour is also equal to 60 minute. तो 1 hour को हम चेंज कर देंगे 60 मिनट में. So 1 hour
कैन बी रिटन एज 60 मिनट्स और ऑलरेडी 5 मिनट्स है ही यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा टोटल व्हाट विल इट विल बी 65 मिनट्स, ठीक है। और इज टू 45 मिनट्स है यहाँ पे, सो यहाँ पे भी वही होगा, इट इज ऑलरेडी इन मिनट्स, ठीक है। नाउ व्हेन यू विल सिंप्लीफाई इट 65 मिनट डिवाइडेड बाय 45 मिनट, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। जो रेशियो के क्वेश्चन होते हैं दिस यू कैन राइट इन दिस फॉर्म। मिनट से मिनट कैंसिल हो गया, इसीलिए रेशियो का जो आंसर होता है या रेशियो जो भी होता है इट इज ऑलवेज इन नंबर, इट विल नॉट अलोंग विद द यूनिट। रेशियो कभी भी यूनिट के साथ आपको आंसर नहीं दिखेगा, सेम यूनिट से ही आप उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो नाउ 65 and 45 again you know it very well that you can simplify it by using 5 or take the HCF of 65 and 45, दोनों का HCF निकालो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसी से डिवाइड कर दीजिए। अदरवाइज यू कैन सिंप्लीफाई डायरेक्टली दैट 65 by 45, so 5 9s are 45, 5 8s are 5 and 5 3s are 15, ठीक है। 13 by 9 और ये क्या है आपका, ये है सिंपलेस्ट फॉर्म 13:9। आप रेशियो क्वेश्चन कर रहे हैं सो यू हैव टू राइट इट इन रेशियो फॉर्म। 13 by 9 नहीं लिखेंगे आप, यू विल राइट इट इन 13:9। दिस रेशियो इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो रेशियो था 1 hour 5 minutes इज टू 45 मिनट्स, इसको हम सिंपलेस्ट करके ले आए 13:9 में, ठीक है। नाउ let's see the next question number 3. It is 8th chapter ना, so I am picking all odd one क्योंकि even हम कर चुके हैं बेटा, we have already done even questions during the class work. Question number 3. If A by B, A is to B is equal to 7:5. Question is if A is to B is equal to 7:5, ठीक है। If A is to B is equal to 7:5 है अगर, and B is to C, और जो B is to C है बेटा, B is to C is equal to 9:14, 9:14, ठीक है। Two ratios are given. They are asking find A is to C. A is to C क्या होगा, find A is to C, A is to C क्या होगा, तो A is to C आएगा कैसे, that we have to focus। हमें दिया है A is to B यानी A by B दिया है हमें, ठीक है। A by B दिया है 7/5 और B is to C है यानी B by C, that is 9/14, ये दो चीज दी गई है, ठीक है। So how we will get A is to C? अगर हमको ऐसा कुछ दिया है तो हमको A by C कैसे मिलेगा? So just take those numbers which is those ratios which is given to you. A by B दिया है बेटा और B by C भी दिया है और हमको क्या चाहिए, A by C। अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं, what we can do, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है और हमको जो रिजल्ट है इक्वल टू, मतलब हमको जो रिजल्ट मिलेगा कुछ करने पर, what we will get A by C। So क्या कर सकते हैं यहाँ पे, see if you will multiply, तो ये और ये तो कैंसिल हो गए, क्या बचा न्यूमरेटर में A और डिनोमिनेटर में C, यही तो हमको चाहिए, ठीक है। So what we will do, we will multiply the given ratio with each other, we will multiply the given ratio with each other। 7/5 है आपका A by B, उसको मल्टीप्लाई करो दूसरे वाले रेशियो B by C से 9/14, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो भी आंसर बचेगा बेटा दैट विल बी A by C। So 7 1 is 7, 7 2 is 14, 9 and 5 we can't simplify, so in numerator 1 into 9 is 9 and 5 2s are 10, so our answer is 9:10। आप लिखेंगे therefore A is to C is equal to 9:10, ये हमारा आंसर है, ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव टू थिंक कि क्या करें, कैसे रीअरेंज करें, सो दैट वी विल गेट द डिजायर्ड सॉल्यूशन जो पूछा गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
divide 360 between Kunal and Mohit in the ratio 7:8. Okay. कुणाल और मोहित है, ठीक है, दो बच्चे हैं, there are two boys, Kunal and Mohit, and we have to divide 360 in between those two boys. एंड ऐसे ही नहीं डिवाइड करना है कि 10 रुपए उसको दे दो तो 350 उसको दे दो, या इसको 100 दे दो तो उसको बचा हुआ दे दो. नो, दे हैव गिवन सम स्पेसिफिक रेशियो कि कुणाल और मोहित को 7:8 के रेशियो में देना है. कुणाल एंड मोहित विल गेट द मनी इन 7:8 रेशियो. 8 रेशियो, 8 आपका यानी कुणाल का कम हो गया, मोहित का ज्यादा हो गया. सो लेट्स टेक द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. गिवन रुपीज इज 360. जो रुपीज है वो आपका 360 है. ऐसे आप फ्रेम किया करो क्वेश्चन को कि वो व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड. 360 इज गिवन एंड 360 को हमको डिवाइड करना है बेटा, बांट देना है. ठीक है, दो लोगों में बांटना है, इसलिए मैंने 2 एरो लगा दिया. अगर 3 लोग होते तो 1 एरो और बन जाएगा यहाँ पे. बट देयर आर ओनली 2 बॉयज, वन इज कुणाल एंड वन इज मोहित. ठीक है, कुणाल एंड मोहित को 360 इन दोनों में डिवाइड कर देना है. अब कैसे डिवाइड करना है, तो 7:8 के रेशियो में, 7:8 के रेशियो में डिवाइड करना है. कुणाल को 7 पार्ट मिलेंगे और मोहित को 8 पार्ट मिलेंगे. ठीक है, और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा और उसका 7 पार्ट कुणाल को दे देंगे और उसमें से 8 पार्ट उठा के मोहित को दे देंगे. लेकिन ये क्या है, कैसे पार्ट्स हैं? 7 रुपीज या 8 रुपीज तो है नहीं, ये समथिंग मोर देन 7 रुपीज एंड समथिंग मोर देन 8 रुपीज है. वो कुछ भी हो सकता है. तो व्हाट इज दैट, सो दैट वी विल गेट द एग्जैक्ट रेशियो इन व्हेन वी विल गो फॉर हायर मनी. हायर मनी में भी जाए, मतलब बड़ी वैल्यू में भी जाए. 360 7 रुपए और 8 रुपए तो देना नहीं है उनको, उससे बड़ी वैल्यू देनी है. तो दैट वॉट एवर द बिग वैल्यू, इट विल ऑलवेज रिमेन्स इन दिस फॉर्म, 7:8 में ही वो भी आए. So for that we multiply a variable with both the terms. ठीक है, दोनों से करेंगे हम. ठीक है बेटा, एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट दोनों में हम क्या करेंगे, सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई कर देंगे. इट मे बी x, इट मे बी y, कुछ भी हो सकता है. सो लेट द कुणाल विल गेट 7x मनी एंड मोहित विल गेट 8x मनी. अब कितना मनी है, तो टोटल इज गिवन टू अस. जब हमको टोटल दिया रहता है तो हम उनको प्लस करके इक्वल टू टोटल कर देते हैं. ठीक है, सो 7x कुणाल को जो मिलेगा, 8x मोहित को जो मिलेगा, दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा. ठीक है, ऐसे आप सोचो कि कुणाल को मिला 7x, ठीक है, मोहित को मिला 8x, ठीक है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो 360 ही तो है, बिकॉज 360 डिवाइड हो रहा है 7x और 8x में. सो ये हो गया 15x, दैट इज इक्वल टू 360. अब आप इसको सॉल्व कीजिए. सो 360 डिवाइडेड बाई 15, सो 30 हुआ. 30 के बाद 60 बचा, 6 तो 4. ठीक है, 24. x की वैल्यू आई है 24, नॉट द मनी. Now the x value is 24. So कुणाल के पास 7x है, तो 7x की वैल्यू कितनी हुई बेटा, 24. ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उनको कितना मिलेगा, हाउ मच ही विल गेट, 7 4s are 28, 2 is left, 7 2s are 14, 15 16. रुपीज 168 किसको मिलेगा, कुणाल को. और मोहित को कितना मिलेगा, मोहित विल गेट 8x. 8x means 8 into x, that is 24. So when you will solve this, 8 4s are 32. ठीक है, 8 4s are 32, 3 is left, 8 2s are 16 and 3 more, so 19. Rupees 192. So Kunal will get 168 and Mohit will get 192. ऐसे आप नहीं बनाओगे, मैंने आपको कंसेप्ट दिया है. ठीक है, you will write after this. Hence the money Kunal receive will be 7x, that is equal to 7 into 24, that is 168, and the money which Mohit receive will be 8x, that is 8 into 24, x की value है 24, that is 192. So you will write the statement, you will not draw in this way, but I am giving you the concept, that's why I am doing in this way.
Okay, I think it is clear to you. Now next question, children. Question number, let's take any other question. Here, if 4x plus 5 is to 3x plus 11 is equal to 13 by 7. This is somewhat type of linear equation. So before that, okay, see, question number 9 is in the same form. Rupees 5,600 be divided into A, B, C. क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल इसी तरह है बेटा, ठीक है. What is question number 9? Question number 9 says that divide 5,600. Question number 9. Divide 5,600 rupees into A, ठीक है, B और C. इन तीनों में डिवाइड करो, ठीक है. डिवाइड दिस 5,600 इंटू A, B, C. आप कैसे डिवाइड करना है? इन द रेशियो 1:3:4. 1:3:4 इस रेशियो में डिवाइड करना, यानी सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? C को मिलेगा, सबसे ज्यादा C को मिलेगा, ठीक है. सो 1 रुपीज, 3 रुपीज और 4 रुपीज तो है नहीं, ये समथिंग मोर देन दैट. सो वी विल put x. Let the money received by A is 1x, B is 3x and C is 4x. And after receiving the value will be same, that is equal to 5,600. तो तीनों को आप प्लस करिए, equal to 5,600 करिए. Find the value of x. When you will get the value of x, substitute here. x यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, आपको वो मनी मिल जाएगा. The value which A will receive, B will get and C will get. So this is that way. Then question number, two numbers are in the ratio 5:9. Two numbers हैं, there are two numbers, so those numbers we don't know, but they are in the ratio 5:9. उनका simplest form दे रखा है कि जो भी नंबर है अगर आप उसको simplest form में करोगे तो आपको क्या मिलेगा? You will get 5:9. On subtracting 3 from each, the ratio becomes 1:2. Okay, find the number. Question थोड़ा different है but easy है बेटा, ठीक है. Two numbers are in the ratio 5:9. 5:9 के रेशियो में दिया है, 5:9 के रेशियो में दिया है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों ये. दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:9. ओके. ऑन सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम ईच, अब जो नंबर है वो तो 5:9 नहीं है, सो लेट द नंबर बी 5x एंड 9x. आप ऐसे लिखेंगे, लेट द नंबर बी 5x एंड 9x. वो समथिंग इससे बड़े हैं, वो 5 और 9 नहीं है, वो इस रेशियो में है. जो भी नंबर है उसका सिंपलेस्ट फॉर्म 5/9 आ रहा है. तो लेट द नंबर बी 5x एंड 9x, हमें नहीं पता तो बट बढ़ेगा वो एक ही साथ, है ना. 5x और 9x के ही फॉर्म में बढ़ेगा. सो लेट द नंबर बी 5x एंड 9x. क्वेश्चन है ऑन सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम ईच द रेशियो बिकम 1:2. तो अगर आप 5x से 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हो और 9x से भी 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हो, फ्रॉम ईच बोला कि ऑन सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम ईच, दोनों जो नंबर हैं पहले वाले नंबर से भी 3 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और दूसरे वाले नंबर से भी 3 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. तो आपको क्या मिलेगा? जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने से पहले तो 5:9 का रेशियो था, लेकिन उस नंबर से अगर पहले नंबर से भी 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, दूसरे नंबर से भी 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें नया एक रेशियो मिलेगा और वो रेशियो है 1:2 का. ऐसे 1:2 का मतलब जो भी नंबर है उसमें 3 सब्ट्रैक्ट करो, जो भी नंबर है उसमें 3 सब्ट्रैक्ट करो, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो कुछ और नंबर होगा बट आएगा वो 1:2 के फॉर्म में, मतलब सिंपलेस्ट करने के बाद 1/2 की फॉर्म में आ जाएगा. So now you can solve. This is example of linear equation. 2 will transpose here and this 9 will transpose to this side. So 2 को यहाँ पे जब लाएंगे तो 2 will multiply with both the terms 5x minus 3. पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो कीप इट इन ब्रैकेट. कभी कभी बच्चे क्या करते हैं
2 को यहाँ ले आते हैं, बट दे विल मल्टीप्लाई इट विथ 5 ओनली, 5x से ही मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर लास्ट में यहाँ पर -3 लिख देते हैं, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। कीप इट इन ब्रैकेट। ये जब इधर आ रहा है तो ये पूरा जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई होगा, चाहे 3 टर्म्स हो चाहे 4 टर्म्स हो। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इफ दिस इज ट्रांसपोज टू दिस साइड, पूरे से होगा, ठीक है। एंड नाउ 9x - 3, अब ये 2 टर्म एक साथ है तो इसको आप ब्रैकेट में लेके जाइएगा उधर। So that is equal to 1 into 9x - 3। ये जाके ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। So now open this, 5 2s are 10x minus 2 3s are 6 is equal to 9x - 3। Now क्या करेंगे बेटा, separating the constant term and variable term। 10x इधर ही है, 9x को इधर ले आइए तो -9x, that is equal to -3 already उधर है on that side, this -6 will go to this side, it will become +6। so ये हो गया x, that is equal to 3, ठीक है। माइनस करेंगे और साइन, ओके इट्स नॉट विजिबल, इट इज नॉट विजिबल। सो 10x - 9x is 10x - 9x is x, that is equal to -3 + 6, 1 is negative 1 is positive, -3 + 6, 1 is negative 1 is positive। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 को 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 3 आएगा एंड साइन ऑफ बिगर नंबर, ठीक है बेटा, ओके। सो सी दिस, x is equal to this। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट इट इन द गिवन नंबर। हमें तो वो नंबर चाहिए ना, x नहीं चाहिए। सो हेंस फर्स्ट नंबर 5x is equal to 5 into x की वैल्यू 3, that is 15, और the second number is 9x, that is 9 into 3, that is 27। तो हमारे पास एक ये नंबर आ गया और एक ये नंबर आ गया, 2 नंबर आ गए। that numbers are 15 and 27, okay। now let's see the another question children। now let's do the next question children। question is, let's take another word problem question। so I am picking question number 17, or we can pick question number 18 is 18, I think I have explained earlier। so let me take 18। I am not aware of the question right now, that in which type of question you are having problem। let me take questions from my side। which one is greater, 1/2 is greater or 4/7 is greater? which one is greater, 1:2 is greater or 4:7 is greater? ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा कि विच वन इज ग्रेटर। छोटे स्मॉल क्वेश्चंस में से आ सकते हैं। तो क्या करेंगे, 1:2 बड़ा है या 4/7 बड़ा है। फ्रैक्शन के टर्म में आप कैसे करते थे, यू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल। डिनोमिनेटर तो यहाँ इक्वल है नहीं, तब कैसे करोगे? सो लेट्स मेक इट इक्वल बाय टेकिंग द एलसीएम। 2 और 7 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 14। क्या करेंगे उसको, वी विल मेक द डिनोमिनेटर इक्वल टू 14। अब इसको 14 कैसे बनाए, तो we will multiply it by 7। so same number we will multiply in numerator also। इसको 14 कैसे बनाएंगे, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 will also multiply in numerator। so ये हो गया 7/14 और ये हो गया 4 2s are 8, 8/14। कौन बड़ा है, which one is greater? डिनोमिनेटर तो सेम हो गए, न्यूमरेटर में which one is greater, 7 और 8? 8 is greater। सो ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया इन द सेंस कि आपका जो रेशियो है 4:7 वो बड़ा है, बिकॉज उसी को करते करते हम आए हैं। ठीक है, वी हैव चेंज इट इनटू दिस फॉर्म, वी हैव सॉल्व, वी मेड दिस डिनोमिनेटर्स इक्वल बाय टेकिंग द एलसीएम। एलसीएम में 14, इसको 14 बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन न्यूमरेटर ऑल्सो वी विल मल्टीप्लाई इट, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आने के लिए, so 2 will multiply in numerator also। आ गया 14, डिनोमिनेटर सेम हो गए। नाउ इन न्यूमरेटर which one is greater is the greater one, 8 is greater, so 8/14 is greater। अब ये 8/14 है क्या एक्चुअली में, 4:7 था। ठीक है,
So 4:7 is greater. So in this way we can solve such question ki which one is greater, which one is smaller. Then next question is arrange the following in ascending order. अब इसको ascending order में करना है. 5:6, 5:6. दूसरा नंबर है आपका 8:9, 8:9, and the third number is 11:18, 11:18. ठीक है. These are 3 रेशियो. ये 3 रेशियो दिए गए हैं और इसको ascending order में करना है. तो ascending order means we have to write it from the smaller till the bigger. Smaller के बाद फिर उससे bigger जो है, फिर उससे bigger और last में biggest one. So 3 ratios are there. कैसे आप justify करोगे which one is greater? Not by looking. हम देख के नहीं बोल सकते कि which ratio is bigger or smaller. What we will do, children? We will follow the previous method, that 5:6 can be written as this, 8:9 can be written in this form, and 11:18 can be written in this form. Now, are their denominators equal? क्या उनके denominator equal है? नहीं है. तो LCM लेंगे और उसको इक्वल बनाएंगे और फिर जब इक्वल बना देंगे तो we will see which numerator is greater. अगर वो न्यूमरेटर बड़ा है तो वो बड़ा हो जाएगा, वो पूरा का पूरा रेशियो बड़ा हो जाएगा. अब इसमें LCM क्या आएगा बताओ? LCM is 18, क्योंकि 6 में 3 मल्टीप्लाई करने पे भी 18 आएगा और 9 में 2 मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाएगा. उधर वो 18 है ही, तो आप LCM निकालो या रफली आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है. इसका LCM है 18. सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई, व्हेन यू विल मेक इट इक्वल टू 18, डिनोमिनेटर को 18 बनाना है तो 6 किस से मल्टीप्लाई होगा? 3 से. सो सेम नंबर विल मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर ऑल्सो. अगेन 8/9 है बेटा, सो ये कैसे 18 आएगा? कम ऑन, 9 2s are. सो इन न्यूमरेटर वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 2. एंड द लास्ट वन इज 11/18. ये ऑलरेडी 18 है तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना. Now 5 3s are 15/18, 8 2s are 16/18 and 11/18. अब इसमें सबसे छोटा कौन है वो आपको पहले लिखना है, क्योंकि आपको असेंडिंग ऑर्डर में. द स्मॉलेस्ट वन इज दिस, तो ये आपका फर्स्ट प्लेस पे आएगा. ठीक है. दिस वन विल बी एट सेकेंड प्लेस एंड दिस वन विल बी एट थर्ड प्लेस. ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो छोटे से बड़ा. लेकिन हमको 11:18 नहीं लिखना, हमें तो रेशियो के फॉर्म में लिखना है. तो हम वी विल पिक दैट वन, द ओरिजिनल वन, जहां से करते करते आए हैं. तो ये क्या है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 11/18 को. सो यू विल राइट 11:18. 11:18 सबसे छोटा है बेटा. देन यू विल राइट दिस वन. 15/18 क्या है? 5/6. तो यू विल राइट 5/6. एंड द लास्ट वन इज द सेकेंड प्लेस, दिस वन. दिस इज 8:9. सो 8:9. तो ये आपका क्या हो गया? द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है. आप या तो कॉमा करके लिख सकते हैं. इफ यू विल राइट बाय सेपरेटिंग कॉमा, देन यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट. रेशियोज इन असेंडिंग ऑर्डर आर, रेशियोज इन असेंडिंग ऑर्डर आर दिस कॉमा दिस कॉमा दिस. और यू कैन पुट साइन ऑल्सो. साइन से भी क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये असेंडिंग ऑर्डर में है. सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और ये सबसे बड़ा. So in this way we can solve such questions. I think it is clear to you. If not, you have to do practice, children. In next class we will do the revision of next exercise. Ratio and proportion का second exercise 8b. It's very very important. So till then, take care and do practice. Okay.